Hey guys, welcome back to the another episode. Today we have read, travel, become. We will ask about the question. We will going to ask a lot about the question. But before we get into the podcast, before we discuss everything about the book, travel, becoming, and everything, can you just get? Can you just give us idea about what is the logic behind the read, travel, become, and who are you? Okay, so first I'll start with who am I and then we'll come to the title. So my name is Avdut and काफी लोग I've seen in my comments also they mentioned the name Avdut, so it's fine. People know my name, thankfully. So I'm actually working as an analyst at a Big Four consulting firm. I graduated in 2019 from NIT Nagpur. I did my UG in mechanical, just like you. And so I mean I'm not, I can't say I'm passionate about of very few things. I'm passionate about a lot of things. Mainly books are one of the most prime examples of my passions, and that is one of the reasons I started this channel. And it's been a very fulfilling journey. मैंने actually lockdown में start किया, and very fulfilling man, very fulfilling. And उसके पहले if I give a brief about my life, it goes like till 10th I was into a lot of things. जैसे I used to dance a lot, I used to play music, I still play the guitar, I used to do this quizzing things, I used to do elocution, drama, everything. 11th 12th was a sucker. 11th 12th I got completely cut off to prepare for my engineering entrance exam, and I think that was the lowest period of my life. उसके बाद it's always been uphill. Engineering was great, life after engineering is also great, and yeah, I that's pretty much about my life. And talking about the title, Yeah. so many of the YouTubers actually told me, I have some friends who were actually YouTubers. They told that you should have a niche and you should have a specific thing. And मैंने सोचा यार, I like reading also, I like traveling also, even I like music also, I like talking also, I like quizzing also. What should I do? What should I do? But then I thought ki the most prominent ones were reading and traveling, and Right. from there read travel become a saya. And actually, if you see my first video is a travel video, and traveling से start किया था, but lockdown happened. मतलब just video डाला and lockdown happened, and then I had reading as my backup option, and I'm doing full-fledged reading content only for now. So it's been Acha. great. Yeah. Okay, yeah, even I saw the playlist. Like there are only three playlists: read, travel, and become. There is no other playlist other than read, travel, become. Become Yeah. Yeah, but I have a slightly to be honest, I have a slightly opposite thought. Like obviously when we are starting a YouTube channel, usually हम बहुत बड़े लोगों से या जो पहले से उसमें उन लोगों से पूछते हैं. But एक चीज मुझे realize हुई कि अगर आगे जाके आपको broad perspective बनाना है कि see, the problem is if you start with the niche, there is one line I remember, start with the niche but do not crawl into one. So that's something I read, and that literally, okay. okay, because that changed my life. Because even I was in the Uh, first, I thought, okay, I'm going to talk about books, then let's talk about books only, and let's name the channel related to mm, books. Then I realized that tomorrow I like quantum physics also. What if I want to talk about that? Tomorrow I want to do the podcast with the other people also. yeah. What if I want to do that? So it Yeah. becomes hard if you become narrow down, like you are going really nearly narrow down. Then it's become really hard to diversify everything. So that's I have a slightly different That's correct. thought with you, what you have. You have a general name and Yeah. start with whatever you like, but in future if your passion turns something out different, then what will you do? You will start again from the zero, or you have to continue with that. So that's the reason I No, named no. my, yeah, so that's Yeah, the yeah. reason, yeah, Ronak even Shaw is the best name. You can literally do anything you want. I mean, if there is a Ronak Shah, there is a lot of things we can do under the Ronak Shah name. But if it's like only Right, book right. blogging, then I have to stick to that one Mm, niche only. That's the reason I have named only Ronak Shah. But obviously, if you are yeah. going a very niche, then if you are like 100% sure that for the lifetime you have to do niche only, then it's better to have Mm, the related name. Like Seeken, the one of the great channel in the India. He yeah. has a very Yeah. he talks about only non-fiction books and only related to Yeah. that. Now, Very unique. Mm, yeah, if you say something to the, like if we talk about talk to our friends, and if you say CK name, they all know that animated summary, and they know this stuff. mm, Like right now, these are the things becoming for branding for him. So this is how my thoughts are. But it's okay to no, have, no, obviously, that when is we true. start. That is true. Unique flexibility. Yeah, Mm, true that. So
how your YouTube channel started at the like don't you feel embarrassed at the starting और कौन क्या बोलेगा वगैरह ये सारी चीजें नहीं हुई थी? एक्चुअली नहीं हुई एक्चुअली मेरा थोड़ा अलग था लाइक आई हैड वन थिंग दैट आई वांट टू फेस द कैमरा आई डोंट नो व्हाई दिस इज बीन वियर्ड एंड बचपन से आई हैव सीन कि आई एम नॉट दैट कैमरा कॉन्शियस मतलब जनरली वी सी पीपल कि अगर कैमरा शुरू होता है दे लाइक ओके दे गो ब्लैंक एंड स्टफ सो बिकॉज आई थिंक मेरे बचपन में आई डिड अ लॉट ऑफ elocution and extempore and impromptu things jake we just have to go and talk whatever comes to your mind Right. like we are doing right now so that I had in mind कि कुछ ना कुछ करके I have to be in the front of the camera. But I never really thought कि मुझे एक niche मिलेगा start करने के लिए. You need a niche to start. Exactly. मैंने सोचा था कि बहुत सारा कुछ डालने से अच्छा है and still मेरे पास become जो है ना word it's a very broad in a broad True. sense. Right. I also have ideas related to productivity. Like people ask me in the comments कि note taking कैसे करते हो, ये कैसे करते हो, Time management. Maybe I can develop. हाँ, exactly. To go into that Nathaniel Drew, Matt D'Avella kind of Right. genre. So ये हुआ, but मैंने travel video first डाला मेरा, it bombed. I mean, it was just random. उसमें कुछ था नहीं कि I have to talk or anything. But lockdown was like a blessing to me. It was one of the, I think, when I'm old, I'm sitting with the oldie uncles and we are discussing, you know, कि हमारे time lockdown हुआ ये. This point will definitely come up that मैंने मेरा YouTube channel start किया and actually I worked on it religiously. Exactly. So yeah, वहाँ से मैंने I had to make something. I knew that for sure. And books, I knew I had read a lot of books. I never thought someday कि I want to read books to tell someone, to recommend someone. They came in handy. Like I knew कि अरे मेरे पास books है. I can talk about books. So that way it started for me. Yeah, exactly. But like yeah, that's true कि lockdown ने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी है. Yeah. I mean, yeah, it has been bad, but personally for me, I have to selfish when I say this, that it was really a good thing for me. Obviously it will different for everyone. We cannot, you know, obviously there is not a general statement for 2020. It can be That's disaster or it can be thriving also. So it depends on the person how one should take it. So even though like even Exactly. for me 2019 was okay, but 2020 like blast, like बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी नई चीजें आ गई, बहुत सारे नए clients आ गए, but इतनी like level 1 से usually level 2 level 3 जाते थे, सीधा level 1 से level 10 पे जाके रुक गए, ऐसे हो गया है. right, and you're doing great. And also, I think the thing we have blast क्यों हुआ because I personally feel this कि हमें सोचने का time मिला. We got time to actually reflect on, you know, थोड़ा still हो गया life. Earlier it was like bhagam dodi, academics, you know, job, paisa, money, everything. Now you're like, okay, there's a vacuum created now. There's nothing to do. We could actually think, you know, we can do this, we can do that. And when that idea comes to you, like Elizabeth Gilbert writes in Big Magic, you know, idea comes to you, it talks to you like a gentleman, you know, you have a conversation. And when that idea gets manifested into reality, it's a different feeling altogether. Exactly. So, yeah. True. But even though after the idea, the biggest part is execution. And if you don't do that, then it's become really hard. And even though like a lot of people started at the before, like when the lockdown started, everyone posted like I'm going to read this, I'm going to do this class. But if we check it out today, then it will be like rarely 10 or 50% कि जिन्होंने actual में कुछ action लिया. So I believe the execution is more important than just getting idea, because usually ideas कब आते हैं, like मैं personally मेरी बात करूँ तो मुझे ideas सिर्फ सोने से पहले ही आते हैं. Like मैं जब बेड पे जाता हूँ ना तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि ओके इस पे वीडियो बनाना है, इस पे वीडियो बनाना है, ये वीडियोस के आइडियाज है, ये सारे वीडियोस के आइडियाज है, इतने सारे आइडियाज आते हैं. और सुबह जब उठ जाता हूँ घूम गायब, सारे के सारे गायब आइडियाज, एक भी याद नहीं आती मुझे. Like what's your strategy, like how you come across ideas for YouTube channel, or obviously for it's right now it's YouTube is your big as compared to the other Instagram or everything. So how you come across idea, or how you know get ideas into execution? Okay, so I have a very clear cut process for this जो मैंने खुद के लिए डेवलप किया है. It's मतलब specific to me. मैं क्या करता हूँ, like I have a day job. YouTube is not really my full-time profession. So YouTube is like my passion project, and I'm not ऐसे pressurizing it that मुझे बहुत बड़ा YouTuber बनना है, इससे I have to work a lot. It's something which I really enjoy, and it's very fulfilling for me. So मेरा सेट होता है कि you know every Sunday I have to put a video. Since past 6 months I have been doing that.
So Monday to Friday, every day I prepare these notes. मतलब आफ्टर जॉब, इन बिटवीन जॉब, मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहता है कि कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए. सो दैट आइडिया डेवलप्स ऑन इट्स ओन. अभी उसकी आदत हो गई है कि जैसे द वीक प्रोग्रेसेस द आइडिया डेवलप्स. And then Friday or Saturday I shoot it, edited everything, night or market. Sunday morning I do it. When I have to answer how do I get these ideas, I think it's by, how do you say, मुझे पढ़ने से ही आते हैं आइडियाज. मतलब जब कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैं बुक, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ओके मुझे जस्ट बताना नहीं है कि ये बुक क्यों पढ़ना है, तो मैं आई कैन ट्राई टू मेक इट अ बिट इंटरेस्टिंग, आई कैन ट्राई टू मेक इट अ बिट oddball. And then I also follow fellow YouTubers like yourself. मतलब your level of content making is so inspirational. Every time I open, I see a new video by Ronak Shah, and I'm like, this guy is amazing. Like, he has so many ideas. So yeah, inspiration also works. Like I take inspiration from others. Yeah. Okay. No, even I come across your channel after the Sushant Singh video actually. Before that, Yeah, yeah. I That literally was. because मैंने जब शुरू किया था तो I was like लॉकडाउन में ही मैंने भी बहुत कंसिस्टेंट था कि ओके लॉकडाउन में कुछ भी हो जाए आई हैव टू टेक यूट्यूब सीरियसली. सो वो तो एक फिक्स था माइंड में, बट पता नहीं था कैसे करना है. सो आई स्टार्टेड विद वॉट एवर आई बुक्स रेड, लाइक युवल नोआ हरारी के बुक्स, अमित त्रिपाठी की बुक, जो जो मैंने पढ़े सबके बारे में मैंने बोलना शुरू कर दिया. फिर वो जस्ट मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे एज ए यूट्यूब एज ए करियर देखना है. जस्ट आई एम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग कि अगर 2 साल के बाद भी मुझे इस बुक के बारे में मुझे क्या लगता था, मुझे अगर उसके बारे में पता करना हो तो आई कैन नॉट रीड दैट बुक. अगर अमित त्रिपाठी की 300 पेजेस की बुक फिर से पढ़ना हो तो इट्स नॉट दैट इजी. सो इट्स बेटर आई कैन गो वॉच माई वीडियो एंड आई कैन थिंक एंड ओके कि इस बुक के बारे में मुझे ये लगा था, इस बुक के बारे में मुझे ये लगा था. That's the reason I recorded everything, like every possible video I made on the famous books की जो जिसका आगे जाके शायद यूज हो सकता है. तो ऐसे मैंने यूट्यूब शुरू किया था. और उसके बाद मैंने सोचा कि अब ये कर रहे हैं तो पॉडकास्ट क्यों नहीं करते. तो उसके बाद मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, बुक्स अमेज, देन श्रुति, सबसे कांटेक्ट कर लिया. और उसके बीच में अब ऑब्वियसली यूट्यूब पे सारे बुक्स रिलेटेड वीडियोस देख रहा था, तो उसके बीच में तुम्हारे 2-3 वीडियोस आ गए. फर्स्ट वन तो सुशांत सिंह का था, सेकंड वन आई गेस इलॉन मस्क का था आई गेस. एंड उसके बाद सब्सक्राइब कर दिया तो यूजुअली आते थे, बट आई वाज नॉट एक्टिवली लुकिंग एट दोज बिकॉज बहुत सारे काम थे, बहुत सारे क्लाइंट्स वगैरह आ चुके थे. सो यूजुअली इतना एंगेजमेंट करने का टाइम नहीं मिला था. और उसके बाद में अभी लाइक रिसेंटली हम दोनों कांटेक्ट में आ चुके हैं. सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड कि ओके ये लाइक आई एम जस्ट काइंड ऑफ की डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ सारी चीजें कि बाद में मुझे रिग्रेट ना हो कि यार ये इस बुक के बारे में क्या लगा था, इस बुक के बारे में क्या लगा था. सो दैट्स द रीजन आई एम डूइंग थिंग. द रीजन आई हैव स्टार्टेड द रीडिंग हैरी पॉटर बिकॉज बचपन में एक बार हैरी पॉटर पढ़ी थी और उसके बाद तो उस टाइम कैसे लगा था कि ओके 100% ये क्या 5 स्टार बुक है और इसमें कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकता. बट जब अब रीड कर रहा तो पता चला कि ओके यार इसमें इतने सारे प्लॉट होल्स है, इतने सारी चीजें इसमें बाकी है. तो ये फिर से भूल ना जाओ इसलिए मैंने ओके लेट्स मेक इट वीडियो एंड पुट इट ऑन द यूट्यूब. कोई देखे ना देखे आई डोंट केयर, इट जस्ट फॉर मी. मुझे 2 साल बाद लगना चाहिए कि ओके हैरी पॉटर में ये सारे प्लॉट होल्स है, इसलिए मैंने दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड दिस. ऐसा कुछ स्पेसिफिकली यूट्यूब नहीं शुरू किया था बिकॉज माय मेन जॉब इज आइदर इंस्टाग्राम और द मार्केटिंग. सो वो तो मेरा था. सो टॉकिंग अबाउट यू, like you have started your read travel become, so what specific content audience should get in these 3 categories? What specific content audience should look for? Matlab, for now I'm focusing on reading content only because I think I am matured enough. I have read a lot of books. I won't say enough books, but I would say I'm at that point ki I can recommend decent books क्योंकि हुआ काफी reading हुआ. It's been 3+ years and I have read quite a lot of books and also I have traveled a lot. The thing is मतलब ये दो चीजें इतनी fulfilling है. Like everybody wants to do it and travel needs money and reading needs willpower. So actually so reading also these needs two are money. very Reading also needs money to buy books. if you think of it, yeah, reading also especially hardcovers, man. I need that paperback. So yeah, more of a, what would I say, more than sharing my life, I want to be a creator who helps people to elevate their life in either reading, traveling, or becoming a better version of themselves. Traveling I will soon do, next year maybe. If things don't go wrong, there's a good chance I'll be traveling a lot. And reading to, hey, like reading we already have. So right. Yeah. Okay. So now let's get into the deep dive of this topic of books because that's the why we are here.
So what are Yeah. the first books you read? And I mean, what are the books you read in the childhood? We'll talk about the life changing books later, but what are the books you read in Mhm. the life in the childhood, or when your reading journey started? Okay, so when you say reading journey, it actually started very late in my second year of engineering, second year के mid में. उसके पहले बचपन में it was very generic, like people around me are reading Dan Brown, okay, let's try Dan Brown, okay, पढ़ लिया. People around me are reading Harry Potter, और Harry Potter, okay, okay, पढ़ लिया. ऐसा था reading. It wasn't like proper literature reading. So it was peer based, but and it was very sporadic. मतलब बहुत कम पढ़ा मैंने बचपन में, बहुत कम. Real reading started when I've even talked about this in one of my videos when I was in my second year doing an internship at Air India in Mumbai. So I had to travel from Churchgate to Santa Cruz station every day for 2 months, around 40-45 minutes का ट्रेन Distance. टाइम है. True. तो वहाँ पे मैं ना म्यूजिक सुन सुन के बोर हो गया था, मतलब पता नहीं क्यों. It sounds weird and people don't get bored of listening to music, but मैंने सोचा कि let's try reading, कैसा लगता है. And thankfully, luckily, मैंने एक बहुत अच्छी बुक पकड़ी. I started the 11th Commandment by Jeffrey Archer. Okay. मेरे अंकल ने रेकमेंड की थी मुझे. और मुझे इतनी पसंद आई वो. उस टाइम थोड़ा कैसे हम डेवलप भी हो गए थे ना, थोड़ा माइंड Right. थोड़ा मैच्योर हो गए थे, थोड़ा हार्ड हिट्स मिले थे लाइफ से. Right. So इतना अच्छा लगा पढ़ के कि यार ये तो मूवी देखने जैसा है. मूवी बफ, आई हैव ऑलवेज बीन अ मूवी बफ, बट रीडिंग में ऐसा लगा कि यार ऐसे तो और एक्सप्लोर करते हैं. And cut back today, I've read a lot of books after that. No story in between. So it was like that for me. ऐसे शुरू Yeah. हुई journey में. Fun fact, even I started my, I mean, to be honest, I started reading journey quite early because of my grandmother. Because वो क्या करती थी कि वो स्टोरी बताती थी और क्लाइमैक्स आने के बाद वो रुक जाती थी और वो कहती थी now you have to read by yourself. Okay. Damn. फिर तो बुक पढ़नी ही पड़ती थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था. क्या इंटरेस्टिंग है ये, बहुत मस्त स्ट्रेटेजी है. उसके बाद मैंने बहुत सारी, मतलब जो जिन लोगों हम्म. पेरेंट्स ने वगैरह पूछा ना, तो मैंने उन्हें वही कहा कि राधा आप उनको पॉकेट मनी देते हो तो उनको बोलो कि ये बुक पढ़ो, इस बुक के मुझे समरी बताओ और पॉकेट मनी ले जाओ. So you can get pocket money every week, you can get pocket money every month. So बहुत पेरेंट्स ने ट्राई भी किया and that worked also. But ये मुझे आइडिया मेरे ग्रैंडमदर से ही मिली कि that work really well. तो उसके बाद वो बचपन में तो बेसिकली पंचतंत्र, अकबर बिरबल, चाचा चौधरी, ये सी सारी बुक्स थी. अराउंड 9-10 में हैरी पॉटर शुरू हुआ था और उसके बाद फिर एक फेज आता है, रोमांटिक फेज आता है कॉलेज लाइफ का. फिर रोमांटिक बुक सारी पढ़ना शुरू कर दी. अराउंड 11-12 से लेके फर्स्ट ईयर तक मेरा भी सेम ही हुआ था. मेरा कॉलेज अराउंड 35 किलोमीटर दूर था और मैं बस से ट्रैवल करता था. सो फर्स्ट 2 महीने मैंने एज ए म्यूजिक, मतलब म्यूजिक सुन के ट्रैवल करता था और मैं सुनता था कि कितने म्यूजिक लगते हैं. मतलब आई वाज लाइक आई टू रीच, आई मीन घर से निकल के कॉलेज जाने तक मुझे अराउंड 11 सॉन्ग्स लगते थे. मैं इसे कैलकुलेटेड करता था. फिर सोचा कि अगर इसको बुक में ट्रांसफर कर लेते हैं कि कितने पेजेस पढ़ने पड़ते हैं घर से जाने के लिए, घर से कॉलेज जाने के लिए. फिर वहां पता चला कि आई कैन रीड अराउंड 30 पेजेस. फिर मैंने एक एक गोल रखना शुरू कर दिया कि 30 पेजेस हो गए, कल जब आऊंगा तो मुझे 35 पेजेस पढ़ने हैं, कल 40 पेजेस पढ़ने. तो एक्चुअली यहाँ से एक्चुअली रीडिंग जर्नी शुरू हो गई. बट आई वाज नॉट रीडिंग नॉन फिक्शन, आई वाज डीप डाइव इनटू द रोमांस, यंग अडल्ट ऐसे बुक्स में, क्योंकि वो एक एज होती है और उस टाइम पे यूजुअली वैसे बुक्स पसंद आती है. और जब यू नो कॉलेज जब खत्म होने लगता है कि जब पैसे की वगैरह जरूरत पड़ती है तो फिर नॉन फिक्शन की जर्नी शुरू हो. So this is no, but I think fiction बहुत अच्छा मीडियम है to start reading habit. मतलब I feel it's one of the best mediums because तुम engage होते हो स्टोरीज से. Stories connect us all, right? So yeah, अच्छा ही था. Yeah. So but in the fiction, what will you recommend to read as a starting point? मैंने fiction तो काफी पढ़ा स्टार्टिंग में. I read Jeffrey Archer, I read Dan Brown, I read a lot of I read Jhumpa Lahiri. बट सबसे ज्यादा इफेक्ट जो मुझे किया एज अ पर्सन, एंड आई थिंक यूड अग्री विद मी व्हेन आई से दिस, दैट खालिद होसैनी's books are life changing when it comes to thinking about your life, when it comes to loving the literature, ये सब चीजें. सो खालिद होसैनी के books were a different ball game altogether. मतलब when I read those books I felt very different, in general. मतलब ऐसा लगता है ना कि you feel that you think about all of your life की एक पर्सपेक्टिव जिसे बोलते हैं ना, क्रिएट होता है. राइट. मुझे पता नहीं, मैं बहुत एनग्रॉस हो गया था वो बुक से. एंड मुझे तब तक आइडिया ही नहीं था कि वर्ड्स में इतना मीनिंग हो सकता है, वर्ड्स में इतना इमोशन हो सकता है. लाइक आई क्राइड लाइक अ बेबी
in both Kite Runner and Thousand Clemens Sunside. Both of these books I cried like a baby. So fiction has always a special place in my heart. कि stories इतने powerful होते हैं कि they are different. So if anyone wants, I know they are a bit long, मतलब थोड़ा सा बड़े books हैं. Right. But if anybody wants to fall in love with literature, Khalid Hosseini is the man to go. True. Yeah, even I do believe that. उसकी books मतलब obviously cry होने वाली होती है कि मतलब after Harry Potter अगर किसी के लिए आंख में आंसू आए वो तो इधर है खलीदी हुसैन. और बाद में I don't remember कि इतने सारे books मतलब ज्यादा books में नहीं होता कि you cry. There is one book, I mean I don't know most people heard about it or not. ब्लू नाइट्स करके एक बुक है कि जिसने काइंड ऑफ मेमोर बट उसने भी मुझे लाइक लिटरली आंखों में आंसू आने जैसा काम किया था. बट ये ट्रू दैट कि अगर फिक्शन में हो तो व्हाट इज इट अबाउट? इट्स अबाउट कि एक स्टोरी है एक 14 years old के बारे में एंड उसके लाइफ के बारे में उसके मेमोरी का उसके लाइफ में क्या क्या वगैरह चीजें होती है. बट तो बिकॉज ऑफ द वर्ड्स इट फील्स सो ग्रेट. और एक्चुअली आई विल सेंड यू द बुक सो यू कैन कनेक्ट विद दैट. एक्चुअली बहुत सारी ऐसी बुक्स होती है कि जो हम रेकमेंड नहीं करते. मतलब पता होता है कि ये हार्ड हिटिंग होने वाली है और शायद लोगों को पसंद भी ना आए. ऐसी तो बहुत सारी बुक्स है कि मतलब इवन इन द नॉन फिक्शन देयर आर लॉट ऑफ बुक्स आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट ऑन द स्क्रीन. बट बहुत सारी ऐसी कि जो मेरे माइंड में है कि जिसके बारे में बात करना है. कैसे करूं बट कैसे करूं पता ही नहीं चलता. Yeah. True that. Yeah. Non-fiction I remember एक book है I've cried a lot. It's When Breath Becomes Air by Paul Carnegie. Okay. बहुत रोया हूँ मैं. अच्छा नहीं वो मैंने पढ़ी नहीं है. When Breath Becomes Air. Actually मेरे पास है पढ़ी नहीं है मैंने अभी तक. बहुत beautiful. मस्त book है. Very beautiful. Okay. So now like when you started your non-fiction journey. Okay, non-fiction journey. Mongoose sold his Ferrari, man. No, obviously you even start with basic books. Mongoose sold his Ferrari. हाँ. मतलब when you started. मुझे पसंद भी आया था बहुत पता है Julian Mantel. अच्छा when? Yeah. I think after 7 to 8 months of fiction reading, आराम से I took my time. मैंने ट्राई किया था बीच में कोई तो पढ़ना. हाँ मैंने बहुत जगह पढ़ा कि दिस गाय वॉरेन बफेट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बुक है बहुत हाई वन अपर वॉल स्ट्रीट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ो यू बी अ बिलियनर. मैंने उठाया 2 पेज के ऊपर पढ़ ही नहीं पाया मैं. हटाओ नॉन फिक्शन. उसका एक फन फैक्ट बताओ ट्विटर पे अगर हो तो पता चलेगा कि वो इस बुक के कैटेगरी में आता है कि जो 99% लोग रेकमेंड करते हैं बट खुद पढ़ते नहीं है. इसमें से बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. बट एक्चुअली उस ट्रू मैंने इतने जोश में खरीदा था. उसके भाई एक स्टोरी क्या है कि जिसको भी अगर एक्चुअल में इंटरेस्ट है ना बट अगर वो इंडियन बैकग्राउंड से बिलोंग करता है ना तो दिस इज नॉट ग्रेट बुक फॉर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. इट्स नॉट ग्रेट बुक टू रीड टू बी ऑनेस्ट. मतलब मैंने बुक पढ़ी है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करते हो देन यू शुड रीड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. अदरवाइज पढ़ने का कुछ मीनिंग ही नहीं है क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट अलग है, हमारा सेंसेक्स अलग है. हमारे यहाँ पे आईपीओ को बहुत कम वैल्यू है, वहाँ पे आईपीओ को सबसे ज्यादा वैल्यू है. ये सारी चीजें कोई बताएगा नहीं लेकिन सब लोग बोलेंगे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ो. बट ये इंटरनल चीज है लेकिन इसलिए अगर रैंक करना हो ना वैल्यू इन्वेस्टिंग वही तो. बट ये सारी चीजें कोई बात ही नहीं करता. ये एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम है. सो in the non-fiction what's your favorite book? Correct. मतलब इतना हाइप है उस बुक का. non-fiction there are a lot of favorites but yeah you can divide with the category no problem. मतलब I think प्रोडक्टिविटी के लिए अलग बुक, टाइम मैनेजमेंट के लिए अलग बुक, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक बुक रेफर करना बहुत डिफिकल्ट है, मुझे भी पता है. like it's like choosing your favorite movie ऐसे. Exactly. Correct. So I think ना मैंने okay let's talk about memoirs first. That's मतलब मैं नॉन फिक्शन का फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा memoirs होता है because rather than someone telling me कि this is the best way to go, if someone tells me I did this and true. I managed to do this, this is my life learning, I connect with that more. So memoirs में I've talked about this book in literally all of my videos. मैं हमेशा बोलता हूँ उस book के बारे में. It's Shoe Dog by Phil Knight.
बहुत बार Okay. रिकमेंड किया, ऑडियंस मारेगी मुझे। सो शू डॉग बहुत पसंद है, इट्स माय गो टू बुक। इलॉन मस्क का एशली वैंस वाला वर्जन इज ग्रेट, अच्छा। आई लव दैट। और हाँ, मैंने एक रिसेंटली पढ़ाई, मैंने जिम कॉर्बेट के सारे बुक्स पढ़े। आई रेड मैन ईटर्स ऑफ टुमारो, टेंपल टाइगर, जंगल लॉर, सारे सारे पढ़े। ब्रिलियंट ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट। इट्स Okay. मतलब ऐसा मेमोयर मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था, इतना रियलिस्टिक था, एक स्टोरी के फॉर्मेट में था वो। सो आई Exactly. कनेक्टेड विथ इट अ लॉट। तो जिम कॉर्बेट एक हो गया। एंड हाँ, इनटू थिन एयर बाय जॉन क्रॉकर, Okay. जो एवरेस्ट का एक्सपीडिशन था, Yeah. वो हाँ भी मुझे हाँ। बहुत पसंद आया था। सो मेमोयर्स में इतने हैं। अच्छा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा ले नॉन फिक्शन का? यू टेल मी। डिसाइड मतलब मेरे पास तो बहुत सारे टॉपिक्स है, बट तुमने कौन से बुक्स पढ़े पता नहीं है। नहीं, यू गिव मी द सब टॉपिक ना, जैसे मेमोयर्स। ओके, वील टॉक अबाउट सेल्फ हेल्प प्रोडक्टिविटी है, वगैरह। प्रोडक्टिविटी सेल्फ है, हेल्प, देन हाँ सेल्फ हेल्प में ना, आई रियली लाइक कंपाउंड इफेक्ट, डैरेन हार्डी। ओके या देन दैट्स ग्रेट देन बुक, आई नो रियली डाउट। लव्ड, हाँ मस्त मस्त, मतलब गागर में सागर टाइप से हो, मतलब छोटे शब्दों में ये एक्सप्लेन अ कितनी लॉट ऑफ 100 थिंग्स। पेजेस की बुक है, 100 और वेरी 108 शॉर्ट। पेजेस, बट या जो जिसको समझ में आ गई उसकी लाइफ चेंज हो गई। जिसको मतलब वो ऐसा हिट किया कि हाँ यार, दिस वन गाय पर्सन मेक्स कितना मैटर करता है सेंस। वो वहां पे समझ में आता है। हाँ, राइट राइट। तो वो एक बुक हो गया। सटल आर्ट मुझे नहीं पसंद आई। उसके बाद मुझे हाँ, दिस दिस ये बिग मैजिक, एलिजाबेथ गिलबर्ट की। या आई डोंट नो इफ इट्स एग्जैक्टली प्रोडक्टिविटी, बट इट्स फॉर क्रिएटिविटी। तो एग्जैक्टली या मुझे बहुत पसंद आई है, वो भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ। हाँ, दिस ऑल्सो बुक नेम्ड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ओके सो हाँ, सो इट इज वन ऑफ द बुक्स जिसमें मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, लाइक हाईलाइट किया है, नोट्स बनाए। मैं जनरली बनाता नहीं हूँ, अच्छा आजकल बनाने लग गया हूँ, पहले नहीं बनाता था। बट इस बुक के मैंने रिलीजियसली नोट्स बनाए हैं, लाइक प्रॉपर। आई लव दैट बुक कि इसमें स्टोरीज वोरीज बहुत अच्छे। सो या, प्रोडक्टिविटी में आई थिंक दीज आर द बेस्ट फॉर मी। ओके अच्छा है, मतलब इसमें से एंड मतलब कुछ नेक्स्ट अराउंड नेक्स्ट नॉन फिक्शन इज हिस्ट्री। हिस्ट्री। हिस्ट्री मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं है, सो यू विल रिकमेंड मी। क्या है? हाँ, नहीं हिस्ट्री में मतलब मेरा जनरली है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ऑफ द ट्रैक पढ़े। मैंने क्योंकि आई एम बिकॉज अगर मेरे मार्कस ऑरेलियस की बुक्स पढ़े, रोमन एम्पायर के। अच्छा क्योंकि मेरे 10th गो ऑन स्टैंडर्ड गो का ऑन। अगर तुम मार्कशीट देखोगे ना तो हिस्ट्री में सबसे मेरे कम मार्क है। हाँ, अच्छा। हिस्ट्री, हाँ यार, मुझे भी स्कूल में पसंद नहीं था, बाद में पता नहीं कैसे पसंद आया। हाँ, युवल नोआ हरारी की वजह से पसंद आने लग गया, सेपियंस की वजह से। अच्छा नहीं, हाँ सेपियंस पढ़ी है नो डाउट, बट सेपियंस वाज अ लाइफ चेंजिंग बुक। ओके हाँ उसके तीनों बुक्स अच्छी है, तीनों बुक्स में मतलब है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे उसने डिस्कस किया है। अभी उसकी तो और एक एडिशन 2 चैप्टर उसके ऐड हो गए हाँ सेपियंस में, और हाँ, उसकी बुक का कुछ तो चेंज हो चुका है ऐसे कुछ तो पता चला, बट अब उस 2 चैप्टर के लिए अच्छा, तो बुक नहीं खरीद सकते। ओके। हाँ, वो भी है, इट्स अ फैट बुक। एग्जैक्टली और कौन सा है यार हिस्ट्री में? आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द बुक। क्या है? इंडिया आफ्टर 70, मेरा भी शेल्फ में पड़ा है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ तो बुक है। इट्स अ वेरी ओल्ड बुक, बट कैसा है, उसमें लिखा है कि जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके 10 years बाद क्या क्या चेंजेस आए विथ रिस्पेक्ट टू एवरी लिटिल थिंग। मतलब कल्चरली क्या चेंज आया, हिस्टोरिकली क्या चेंज आया, एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया, पॉलिटिक्स में क्या इकोनॉमी चेंज आया। वगैरह ओके तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मिला जो बहुत कंसाइज है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द बुक, आई टेल यू, आई सेंड इट टू यू। या सो दैट, हिस्ट्री में तो इतने बुक्स आई लव। अच्छा ग्रेट। नॉन फिक्शन क्या बचता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरी ऑडियंस है तो नॉन फिक्शन। यूजुअली वो नॉन फिक्शन बुक्स के बारे में या उसके बारे में इंटरेस्टेड है, क्या टिप्स में क्या मिलेंगे या समरी क्या है बुक्स की, नॉन फिक्शन बुक्स की, तो यूजुअली उसके बारे में ऑडियंस मेरी ज्यादा है, सो दैट्स द रीजन आई एम मोर फोकसिंग ऑन द नॉन फिक्शन बुक्स रादर देन गोइंग फॉर द फिक्शन। हाँ, फिक्शन में राइट यूजुअली राइट। मुझे रिकमेंडेशन या आते आइदर वो मुराकामी बुक्स का चाहिए, नहीं तो हैरी पॉटर बुक्स, नहीं तो हॉबिट, जो ऐसी हाँ फेमस बुक्स है ना तो उसके बारे में लोग पूछते हैं, हाँ अदर देन सारे नॉन हाँ। फिक्शन बुक्स के बारे में पूछते हैं कि ये बुक कैसी है, वो बुक कैसे है। सो बहुत सारे बुक्स है कि मैंने जो अभी तक पढ़े नहीं है, बट आई वांटेड टू रीड। सो पता नहीं कि अब कितना होगा, कितना जाके पढ़ना होगा, बट लेट्स सी। टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए लाइफ चेंजिंग बुक थी द 4 Hour Work Week, कि जो डैम हाँ, मतलब उसने तो लाइफ चेंज कर दी थी। ओके, और टिम उसके फेरिस। बाद हाँ उसके बाद हाँ, शो योर वर्क बाय द ऑस्टिन कोहली,
दैट बुक लिटरली, बिकॉज उस बुक्स ने आइडिया दी थी कि मुझे कि व्हाई यू शुड बी ऑनलाइन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बी ऑनलाइन, व्हाई मतलब यू जस्ट हैव टू बी ऑनलाइन, यू जस्ट हैव टू शो योर फेस टू द वर्ल्ड, बिकॉज इंटरनेट ने सारी चीजें क्लोज कर दी है. अगर तुम इसका अभी फायदा नहीं उठाओगे तो यू विल be there is two things, two curve in the life. The first one is linear curve, जहाँ पे तुम ग्रेजुएट होते हो, मतलब स्कूल, ग्रेजुएशन, जॉब, सैलरी, घर, रिटायरमेंट, बच्चे. दिस इज योर लीनियर कर्व. और सेकंड जो कर्व होता है वो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, कि जो तुम कुछ तो अलग करते हो जिसका स्टार्टिंग में कुछ फायदा नहीं होता, मतलब स्टार्टिंग के कुछ 3-4 ईयर्स में आपको कुछ नहीं मिलता, बट आपका एक बार वो एक्सपोनेंशियल पीरियड शुरू हो गया, देन यू गेट टू मच हाई. सो दस ये चीजें मुझे लगी कि ओके, ये चीजों पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कि ये चीजें शायद चेंज कर सकती है. दैट्स द रीजन कि मैंने अपना मतलब जॉब छोड़ने का वो भी अलग ही रीजन था, बट दैट्स द रीजन ये डाइवर्ट हो गया और इस सारी चीजों में आ गया था. सो व्हाट्स योर लाइफ चेंजिंग मोमेंट, कि तुम्हारी लाइफ में क्या ऐसा मोमेंट था कि जहाँ पे लाइफ चेंज हो गई, कि लगा कि ओके ये सारी चीजें करनी चाहिए? It can be your school, it can be college. Deep philosophical question. It can be school, it can be college. Like मेरे लिए the 4-hour work week थी वैसे. अच्छा, it has to be a reading thing क्या? कि आप anything. You can talk about anything. It's all about your life. Life changing, मतलब see, there are a lot of things which changed me as a person, which did a lot of things for me, but एक चीज which is coming at the top of mind, which is recent, इसलिए मेरे top of the mind पे है कि making Sushant Singh's video, that video was life changing for me. मतलब for everything, me as personally, मतलब ठीक है, the video did really good, it broadened my audience and all, but that is very secondary, it is a byproduct. Right. Personally for me बहुत evolve हुआ मैं उस video के बाद. मैंने expect ही नहीं किया था कि मतलब मैं इतना change हो जाऊंगा, because when the news came out, and I have been a fan, ऐसा नहीं कि I have one of those people who became a fan afterwards, मैं ऐसा नहीं था. I have been following, he was a book reader, मैं पहले से पता था, उसका Twitter page हम follow करते थे, Toxi lectures. अच्छा, एक्चुअली मेरा भी, मुझे भी वो पसंद मुझे भी वो पसंद क्यों था कि he talks a lot about physics, quantum physics. उसका मैथ्स में मतलब वो इतना, उसके जो अगर इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे, उसने जो प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व किए थे, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, डैम मैन, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में होके भी ये he was passionate about all these things, so इसलिए मुझे वो पसंद था. Yeah, he was on another level. मतलब the kind of books he recommended ना, they were way ahead of our league also. मतलब readers जो है उनके भी आगे के books पढ़ता था, like Brain Rules and all, are very complex books. So ठीक है, I was talking about my life changing thing, so I knew कि he's a good reader before the sad thing happened. And after that happened, it really impacted me. And God knows why, I knew I had to make that video. मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि it automatically manifests around you, कि things. मेरे को पता नहीं, and it's a very इतनी interesting story. मैं रात को सोया था, and मैं जैसे ही उठा, I knew मेरे को वीडियो बनाना है. मैं कुछ रेडी कुछ नहीं था. मैंने मॉम को बोला फटाफट कॉफी बनाओ, I want to make this video. मॉम ने पूछा भी क्या बनाना है. I was like, I have something in my mind. मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, because I already knew what books he wants to recommend. फटाफट कैमरा लिया उन्होंने. इफ यू ऑब्जर्व माय शर्ट इज वेरी बैड आई एंड, मेरा पूरा हालत खराब है, लाइटिंग खराब है, म्यूजिक का सब कुछ खराब है वीडियो का. बट मुझे एक बात मुझे पता चल गई कि इफ यू रियली हैव टू डू समथिंग, इट ऑटोमेटिकली कम्स. मतलब वो क्लीशे बोलते हैं ना कि डू व्हाट यू लव. मैंने एक्सपीरियंस किया हो, मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि डूइंग व्हाट आई लव. मैंने जब किया, आई फेल्ट सो फुलफिल्ड. मुझे ऐसा लगा कि ऐसा शांत हुआ मेरा मन कहीं ना कि आई डिड समथिंग ग्रेट. सो दैट वाज यू कैन कॉल अ लाइफ चेंजिंग. उसके बाद YouTube बनाना, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी. उसके बाद से दैट बिकम्स रेगुलर मेरा. yeah, it becomes regular. So that video was the turning point. इसको एक अलग नजरिए से अगर देखा जाए, मतलब एज अ obviously I belongs to the marketing background right now, तो अगर इसको मार्केटिंग से नजरिए से देखा जाए ना, तो we say shooting for the moon and shooting for the star and hitting the moon, this kind of thing happen. Actually तुम्हें भी पता नहीं था कि ये वायरल होगा कि नहीं होगा, and we usually think कोई भी वीडियो कोई भी वीडियो बनाने से पहले हम सोचते हैं कि शायद ये वायरल होगा, बट वो एक्चुअली में होता नहीं, और you make it one random video and that goes like literally high. This is what actually happens in the YouTube with most of the people. Yes.
yeah, I've experienced this. मैं ना actually Quora पे लिखता था. Last year मैंने बहुत लिखा है. I have more than 1 million views on Quora. अच्छा. So उस पे भी ऐसा हुआ. Some answers I've researched like hell and written. 100 views, 150 views. उससे ऊपर नहीं. 2 upvote, 3 upvote. I wrote this answer बिस्वा के ऊपर. I met बिस्वा at an airport in Bombay. तो हाँ. मैंने उसके ऊपर एक आंसर लिखा है. It went viral. It went अच्छा. crazy viral. Even if you see now, it like crazy viral. वो मैंने हंसी मजाक में लिखा था, वो भी फ्लाइट में बैठे बैठे. मैं मिला बिस्वा से, मैं फ्लाइट में बैठा, खट 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 आंसर लिख दिया, वायरल. So you are right. वो that's all very. Actually, it happens with every platform. मतलब पता नहीं होता कि इट्स ऑल अबाउट एक वो सबको पता है कि इट अगर आप लॉन्ग टर्म में रहते हो तो इट डेफिनेटली गिव्स यू समथिंग गुड, बट आपको पता नहीं होता कि इवन गैरी वी सेज कि you have to keep on creating content, but you never know which one of your content will make you virality. So you just have to keep on shooting the things, and कोई से एक shoot होगा जो बहुत तेजी से जाएगा, and that will change your life. और सबको उठा देगा वो. Exactly. सबको उठा देगा. Even go on the Instagram, go on any other platform, the same thing happens. Even same thing happen on the Medium also. Medium में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एक ही वायरल हो गया, बाकी सारे अभी भी 5 व्यूज 10 व्यूज वैसे ही चल रहे हैं, बट एक ही है जिसकी वजह से वायरल हुआ है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है. हाँ, करेक्ट. होता है. एंड दैट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, राइट, कि ये वायरल होगा. Exactly. ये मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत. True. So what's your future plan regarding to the YouTube channel and the audience and everything? One thing I know for sure that I won't ever stop making videos. मतलब ever. कुछ भी डालूंगा, पक्का डालूंगा. Value adding डालूंगा. Whatever I can, I will. कभी स्टॉप नहीं करूंगा. अब ये तो मैंने सोच लिया है. एंड रिगार्डिंग फ्यूचर, एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मैं प्रॉपर मेन स्ट्रीम, अभी यू कैन कॉल मी ए मेन स्ट्रीम यूट्यूबर बिकॉज आई हैव बीन स्टडिंग यूट्यूब ऑल्सो. ऐसे नहीं कि मैं बस डाल रहा हूँ. इफ यू सी, आई करता हूँ बैक एंड, वी ऑल डू. वी स्टडी द मार्केट, वी स्टडी द एसईओ, द टाइटल, थंबनेल, टैग्स, एवरीथिंग. वी स्टडी एवरीथिंग. सो इट्स अ प्रोसेस. तो मैंने एक चीज तो डिसाइडेड है कि आई वांट टू मेक वीडियोस. मैंने ये नहीं सोचा है कि कितना बड़ा बनना है, इतना माइलस्टोन हिट करना है, या it's all a byproduct, but it's something which it's making me happy, so I'm doing it. ऐसा है अभी के लिए. True. The milestone is not a tangible thing, to be honest. From my perspective, milestone like 100K, 10K, I mean, that's not in your control. You cannot control those things, and that's not a tangible to get the results. What's in your control? Okay, one video per week, 2 videos per week, and I have to make it. I mean, that's how I look at the YouTube. Okay, these are the things in my control, and how I have to do it. So that these are the tangible things I look for. But somehow that YouTube studio is kind of वो क्या करता है हमें, इतना सब दिखाता है. अरे वीडियो रैंकिंग दिखाता है कि लास्ट 10 वीडियो में तुम्हारा वीडियो कितना रैंक कर रहा है, और वहां पे लगता है यार कुछ चला ही नहीं वो तो. टोटल व्यूज में सब माइनस डालता है रेड कलर में. Exactly. -10%, -5%. तुमने आई गेस आफ्टर सुशांत सिंह के 10 वीडियोस का 8 वीडियोस के बाद तुमको ज्यादा डाउन दिखने को मिला होगा. नहीं, मेरा बहुत अलग था. सुशांत का वीडियो बाद में वायरल हुआ मेरा. अच्छा. ओवरनाइट वायरल नहीं हुआ. इट टुक सम टाइम, इट टुक इट्स टाइम. ऐसा नहीं था कि नेक्स्ट डे आई हैड 5K 10K. नो. ओके. ऑलमोस्ट आफ्टर आई गेस 2 weeks the video went viral. It took some time. It took its time. ऐसा नहीं हुआ कि ओवरनाइट. So yeah, but हाँ अभी तो ऐसे टॉप पे वही होता है. उसके बाद True that. Yeah. So and also I would like to add one more point regarding increasing content and hitting a milestone. कि now you are a YouTuber, you may understand this, that the kind of love that we get from our audience. मैंने कभी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि you are talking in front of a camera and people around the world are seeing you, and they're just doing their own business, and they're actually taking out time and watching you doing something, talking something worthwhile, and taking out time to comment, taking out time to like the video, comment, subscribe. It's such a personal thing. They're giving some part of their time. They're completely anonymous, and they could be giving it to you. So it's your responsibility that if they're giving itna time, तुम भी उनको कुछ value दो, right? So I'm a fan of YouTubers who are really value giving. Obviously, everybody gives value in their own other way, but I really have respect for these kind of YouTubers who value their audience a lot. True that.
इसका एक ड्रॉबैक क्या है, व्हेन यू बिकम बिग इट्स बिकम रियली हार्ड. राइट नाउ वी नो ईच एंड एवरी पर्सन, ओके, जो कमेंट करता है, वी नो देयर नेम्स, वी नो एवरीथिंग, बट व्हेन यू स्केल it becomes really hard to manage community. I mean, that's the thing I'm a little bit worried about. Ki I know right now, I know, okay, these are the peoples I know, these are the peoples what they do, either they are using their parents account or either they are using their own account. I know all these things because I am really connected with them, but I have this little bit of feeling that agar channel grow ho gaya, then how will I manage the community? That's the doubt I have, but I have not thought about it कि इसके बारे में क्या करना है. Probably I will start a group or something कि जहाँ पे जो जो एक्चुअल में एक्टिव है, तो हाँ, पर्सनल कनेक्ट रखने के लिए कुछ ऐसे कर सकते हैं. अदरवाइज आई विल गो फॉर द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी और समथिंग लाइक दैट. तो वो अभी तो आगे प्लान में. हाँ, बट वो सब लोग यूज करते हैं कि नहीं, थोड़ा डाउट है ना कि सब लोग डिस्कॉर्ड यूज करते हैं. मतलब लोगों को पता नहीं है. आई रिमेंबर समय रैना मेकिंग अ वीडियो हाउ टू यूज डिस्कॉर्ड. या जो समय रैना जो चेस खेलता है ना, उसने लिटरली अलग से वीडियो बनाया कि हाउ टू यूज डिस्कॉर्ड सो दैट मोर एंड मोर पीपल यूज. But yeah, things are changing. We never know इसमें क्या आगे revolution आ जाए. We just know we have a core audience. एक you'll see कि एक तुम्हारा core audience होगा who love you. Exactly. And they'll always be with you till the end. So that's a really great thing being on YouTube. Yes. और एक चीज मैंने पढ़ी थी कि कुछ वो एक्चुअल में कोट मुझे याद नहीं आ रहा था कि the biggest fan is your stranger. ऐसा कुछ तो लाइन थी कि हमें फ्रेंड्स में वगैरह इट्स नॉट दैट मैटर कि यूजुअली हम अपने वीडियोस व्हाट्सएप पे भी शेयर नहीं करते. यूजुअली हम हम शेयर ही नहीं करते. आइदर इट इज ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालते हैं और नहीं तो डालते ही नहीं है. सो कहीं पे तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कहाँ पढ़ा था, बट कुछ तो था कि योर बिगेस्ट फैन इज योर स्ट्रेंजर, ऐसा कुछ तो था. एंड दैट ये जब हुआ ना यूट्यूब, तब पता चला कि ओके, इट इज रियली ट्रू. इट इज ट्रू. Like you never know who you are inspiring. True. So ऐसा कुछ fan moment आया था like from this last 6 months? Yeah. It's been great यार. मतलब मैं honestly जब ये सब आता है, even every comment, आज भी कोई comment आता है, मैं actually बहुत बाद में पढ़ता हूँ comments में, right away नहीं पढ़ता हूँ. तो मैं बहुत personal connect feel करता हूँ. मैं ऐसा मन करता है कि यार खुद जाके thank you बोलूँ किसी ना किसी way में. और मैंने भी अभी रिसेंटली मैंने गिव अवे भी किया था चैनल पे. सो देयर वाज सम पीपल, दे वर लाइक यार वी कुड नॉट विन इट, आई विश आई वुड हैव वॉन. मेरे को इतना बुरा लगा कि यार मेरा बस चलता, मैं हर एक को एक बुक देता था. तो फैन मोमेंट तो नहीं, देयर इज वन पर्टिकुलर ईमेल की it was very personal to me, very actually life changing also, you could say. I have talked about this in one of my videos as well. Someone from Jammu and Kashmir had given me sent out a nice email to me saying that things were very bad at their place. आसपास बहुत अच्छा नहीं चल रहा था. There was political unrest and stuff. And between these, the person saw my videos and he started reading. And in 2-3 months, he was like totally overjoyed. And that feeling. अपन जब books खत्म करने के बाद जो feeling आती है, exactly. So वो feeling आया and मतलब स्वर्ग में है. That mail. And that mail was like, हो गया, I'm done. मतलब हाँ, हो गया मेरा, मस्त बना लिया videos. It's served its purpose. ऐसा लगा मुझे. So this particular I remember very nicely. अच्छा. Because usually होता है कि अगर 1-2 वीडियो अगर गलती से या हो गए वायरल, तो you get one kind of fan moment कि तब पता चलता है कि actually क्या हो रहा है. True. What is yours? I want to know yours. Well, मेरे तो वैसे 2-3 fan moment थे, ऐसा एक ही नहीं था. Because usually I was already present on the Instagram. So इस Instagram पे तो बहुत. Yeah, you have a lot of online presence. Yeah, so पहले से वो तो था क्योंकि मैंने वो कॉलेज में शुरू किया था. मतलब सेकेंड ईयर में मैंने ब्लॉग शुरू किया था और आई वाज राइटिंग जस्ट रैंडम स्टफ जो भी मेरे मन में था. जस्ट पहले से ये आदत थी कि जो भी लाइफ में होना है वो कहाँ पर तो लिख के रखना है. बिकॉज एक फर्स्ट ईयर में मैंने एक बुक पढ़ी थी कि आवर मेमोरी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि यू कैन नॉट रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग अनलेस यू रिवाइज इट और अनलेस यू टेक इट डाउन. तो ये चीज मुझे उस टाइम पे याद है और अभी तक ये पता है कि ओके, अगर तुम ये सारी चीजें कहाँ पे तो रिकॉर्ड नहीं करके रखोगे ना, तो इट लाइफ टाइम से हमारे साथ नहीं रहेगी. सो सेकेंड ईयर में मैंने ब्लॉग शुरू किया था एंड आई वाज राइटिंग एवरीथिंग. मेरे कॉलेज के गैदरिंग के बारे में, एनुअल फेस्ट के बारे में, जो भी लिखता था, जो भी सारी चीजें होती थी, वो सब कुछ लिख के रखता था. एंड थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट मैंने एक लव स्टोरी लिखी थी 5 पार्ट में डिवाइड करके. कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी एक्चुअली, वो काइंड ऑफ रियल मोमेंट था, बट उसको मैंने थोड़ा सा फिक्शन थोड़ा ऐड करके
गुजरात जब मैं गया था ना, Nice. तो उस टाइम पे ये स्टोरी हुई थी. यू कैन रीड दैट, इट्स अवेलेबल ऑन द ब्लॉग. एंड Okay. वाज वेरी शॉर्ट, कुछ ज्यादा नहीं, दो Oh तीन wow. तीन पैराग्राफ, I'm gonna check it out. तीन पैराग्राफ की 5 Hmm. स्टोरी, 5 पार्ट्स है, ऐसा कुछ तो है. तो बहुत छोटी स्टोरी है, और उसमें हाँ. मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, और दैट वेंट वायरल लिटरली. Hmm. आई वाज लाइक, आज तक कभी Oh. आते थे कि मुझे लाइक महीने के 100 व्यूज 150 व्यूज इतने आते थे, मैं वाज कुछ नंबर्स के बारे में देखता नहीं था. और उसके बाद Hmm. दिन के Hmm. 50,000 व्यूज, दिन के 30,000 व्यूज. ओ माय गॉड, आई वाज Yeah. लाइक क्या है ये, क्या हो रहा है. Yeah. एंड उसके बाद एक्चुअली मेरा ब्लॉग का मोनेटाइजेशन शुरू हुआ था, मतलब गूगल एडसेंस वहां से शुरू हुआ था. एंड वहां से मुझे पता चला कि ओके, देयर इज समथिंग इन द अच्छा. ऑनलाइन, बट यू हैव टू बी प्रेजेंट. और वहीं से एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई थी. और उसके बाद वो एक फैन मोमेंट था कि Nice. उसमें उस पे एक ने कमेंट किए थे कि आई एंजॉयड दिस स्टोरी वगैरह वगैरह करके, एंड आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग, Hmm. बट कैन यू सेंड मी योर एड्रेस और Okay. एवरीथिंग. तो वो एक चीज हुई थी. हाँ. सेकंड मोमेंट था अब Okay. यूट्यूब वाला, कि जब यूट्यूब पे मैंने शुरू किया था, एंड किसकी आई गेस इसकी युवल नोहारी की मैंने बुक का रिव्यू किया था ना, तो उसका. और एक हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का है, प्रांजल कमरा करके है, उसका यूट्यूब चैनल है, फिनोलिक्स करके, अगर Okay. तुमने कभी देखा होगा तो. उसका 1 मिलियन हाँ, से ज्यादा सुना है. है, सुना है. हाँ, तो उसकी खुद की बुक हम्म. है ना, तो उसका बुक का मैंने ऐसे, वो शेयर मार्केट के रिलेटेड थी, और मुझे शेयर मार्केट पसंद है, तो मैंने ऐसे टाइम पास के लिए वीडियो बना के डाला था. एंड बहुत लोगों ने मैसेज किया कि थैंक यू फॉर दिस वीडियो, कि तुम्हारी वजह से मुझे एक्चुअल में पता चला कि इंडिया में ऐसे लोग हैं कि जो एक्चुअल में यू नो शेयर मार्केट के बारे में गाइड्स करते हैं, शेयर मार्केट की बुक्स वगैरह शेयर करते हैं. और उसके बाद मैंने और एक वीडियो डाला कि बेस्ट फाइनेंस बुक्स टू रीड अगर आप इंडिया में हो तो वो वीडियो. उसके बाद उसके भी बहुत सारे कमेंट्स और मेल्स आए थे कि थैंक्स फॉर दिस वीडियो, मुझे फाइनेंस में इंटरेस्टेड था, बट बुक्स अच्छी नहीं मिल रही थी, इजी बुक्स नहीं मिल रही थी. एंड मुझे पता चला कि ओके, आई हैव टू डू इट समथिंग, इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. और वहां पे एक फुलफिलिंग मोमेंट था कि अच्छा, कुछ तो अच्छा हो रहा है. सो ये कुछ 2-3 मोमेंट थे ऐसा अभी तक, क्योंकि बाहर तो गया नहीं हुआ, तो एक्चुअली पुणे में होता तो अलग बात थी, बाहर गया नहीं हुआ तो पता नहीं कि बाहर लोग पहचानेंगे कि नहीं होंगे, वो तो बाद में पता चलेगा. हाँ, वो तो हाँ बाद में पता चलेगा. इट्स अ बाय प्रोडक्ट, मतलब पहचाने ना पहचाने, बट स्टिल यू आर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल मैसेजेस. व्हाट एल्स डू यू वांट? बट एक चीज है कि आई डोंट वांट टू बी जेनरिक फेमस. मतलब ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो इसमें हम कितने भी बात करें, मतलब यूट्यूबर कुछ कितने भी बात करें, बट अंडरलाइन एक सेल्फ मोटिव कुछ ना कुछ होता ही है सबका, कितना भी बड़ा हो, एक 0.1% तो सेल्फ मोटिव होता ही है. बट इसमें मैंने भी सोचा था कि इन फ्यूचर क्या होना है, मतलब आइदर आई वांट टू बी जनरल फेमस इन काइंड ऑफ लाइक प्राजक्ता कोई, आशीष चंचलानी, दे आर जनरल फेमस, और आई वांट टू बी द निश फेमस, मतलब कि एक स्पेसिफिक निश के बारे में सारी चीजें पता होना और उसके बारे में बात करना. तो निश फेमस होना आई बिलीव कि मोर बेटर देन गोइंग फॉर अ जनरिक फेमस, क्योंकि इज बेटर. अगर यू नो राइट नाउ वी कैन टॉक अबाउट बुक्स बिकॉज हमारे दोनों का इंटरेस्ट है. अगर किसी जनरल पर्सन से मिलेगा तो व्हाट वी विल टॉक. That's the problem I have in my mind. So यही एक 2-3 चीजें कि अभी मैं फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि क्या होगा, बट गॉड नोस कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या हो सकता है आगे जाके. नाइस नाइस. ये ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तुमने चॉइस किया कि बेसिकली कम्युनिटीज, राइट? अभी हम दोनों बात कर पा रहे हैं क्योंकि वी बोथ आर रीडर्स. सो ना देयर इज वन वीडियो ऑन यूट्यूब ही, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन मार्क जकरबर्ग एंड डॉक्टर युवल हरारी. उसी से अभी मुझे क्लिक हुआ. They both talk about communities. Now, Harari has been studying communities जब से Homo sapiens, Neanderthals, वो सब species of human beings थे. And Mark Zuckerberg जो modern day में communities उसने develop किया. So that conversation is very interesting. Someday you could check it out. So it's beautiful. Someday. Community is really important right now. Without that, you cannot do anything. If you have a strong community to back of your back to back you, then you can do a lot of things. You can, you can rant about any book if you have a strong community. Yeah, exactly. Because today, if you go and rant about any book or anything, then you will get a lot of haters for sure. I mean, the more faster you grow, the more fast you will get haters. That's the golden line I read somewhere. Yeah. So okay, now we are talking about the hate. ना वो गुरु मूवी गुरु में बोलता है ना, अभिषेक बच्चन बोलता है कि लोग अगर तुम्हें गाली देने लगे, हेट करने लगे, समझ जाना कि तुम तरक्की कर रहे हो. so, वो होता ही है. और मुझे भी एक्चुअली सुशांत सिंह का वीडियो, इफ यू गो चेक इट आउट ना, वहां पे ऐसे फोरम्स बन गए, पता है क्या? अरे बाप रे, legit like lot of comments there. I think more than 800 comments or something. Oh my god. बहुत झगड़े भी हुए वहां पे. ये सब रिया सब. That wasn't the whole point of my video, right? मैं क्या बोल रहा हूँ? What is going on in the comment section? So this happens. Yeah. Actually, I was coming to that point कि
ऐसे कुछ हेट कमेंट याद है कि जो उसके मतलब हेट भी हो और थोड़ा ह्यूमर भी हो, ऐसा कुछ हुआ था? हेट तो नहीं है, मतलब सुशांत की वीडियो पे बहुत हेट है नहीं, मुझे। इन नॉर्मल हेट बहुत एज सारी इन क्या वीडियोस है है ना। कि व्हाई आर यू मेकिंग दिस नाउ। अच्छा, हाँ, मतलब नहीं आया मुझे बाकी वीडियोस पे। आई थिंक कमेंट्स नहीं आए कभी। मे बी कभी साउंड इश्यूज नहीं है, बट दैट इज दैट हाँ वो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, लाइक हाँ आई राइट टेक राइट। इट वेरी सीरियसली। सो आई डोंट थिंक कोई हेट कमेंट आया यार कि नो 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 हेट कमेंट। अच्छा। ओह, आई फील सो ब्लेस्ड सडनली। नहीं मतलब ह्यूमरस हेट कमेंट होते हैं जब मेरे मेरे पास आते हैं वैसे बहुत सारे ह्यूमरस हेट कमेंट, क्योंकि हाँ, कैसे एक दो कैसे? एक दो वीडियोस मैंने हिंदी में डाले थे ना, तो यूजुअली आते हैं कमेंट्स कि यार तुम हाँ इंडिया से हो, हिंदी में क्यों नहीं वीडियो बनाते, और एक दो गालियां उसमें आगे होती है हाँ, ये यूजुअली। मुझे वो भी आया है। हाँ वो एक कमेंट होती है, और दूसरी हाँ कमेंट आई थी जो मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो पे आई थी उस पे, कि हाँ। एक ने क्या कमेंट की थी, मतलब एक लड़की ने कुछ तो कमेंट की थी अबाउट द गिव अवे वगैरह, तो उसने रिप्लाई दिया था उस कमेंट हम्म, को, ही इज नॉट सन ऑफ हम्म। जेफ बेजोस, अंबानी और एनीथिंग, पहले इसका चैनल बड़ा होने दो, मोनेटाइज होने दो, फिर ये बुक्स गिव अवे करेगा। आई वाज लाइक हाउ डैम। स्वीट यार। मतलब ये हेट भी कर रहा है कि गिव अवे नहीं कर रहा है इसलिए, ऊपर से हाँ सॉल्यूशन भी दे रहा है। हाँ। मस्त मस्त। True that. नाइस। Okay, now let's come to the final point. Any three or five books that people should read in their life, what do you think? Then what will be that books? 3 to 5, because I know it's one is really hard number. थ्री, हाँ 3 to 5 ना। देखो यार, मतलब फॉर अ नॉन रीडर आई वुड डेफिनेटली डेफिनेटली सजेस्ट रीडिंग हैरी पॉटर। सो देयर इज अ रीजन टू इट। इट्स नॉट जस्ट, मैंने ना हैरी पॉटर को बहुत अलग वेज में देखा है। लाइक यू सेड, हमने बचपन में, तुमने ही बताया कि Hmm. जब हमने बचपन में पढ़ा, हैरी पॉटर वाज डिफरेंट फॉर यू एंड नाउ व्हेन Right यू now रीड इट different. वाज डिफरेंट फॉर यू। इट इज बिकॉज इतना लेयर्ड है वो, इतना लेयर्ड है हैरी पॉटर। लाइक डॉक्टर पीटरसन ने एक लेक्चर, उनका एक लेक्चर है पर्सनालिटी ट्रेट्स पर। सो उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैरी पॉटर के कि Oh my वो god. बोलते हैं कि टू डेवलप इनटू अ हायर पर्सनालिटी यू शुड बी लाइक अ फिनिक्स। हैरी पॉटर में जो फिनिक्स दिखाया हुआ है Phoenix, ना, right? वो हाँ, जल जाता है, अपना पूरा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म वापस करते रहता है। दैट इज right. अ पॉइंट। और फिर ऐसा पॉइंट है कि इन एवरी वन ऑफ अस देयर इज अ इनर चेंबर, जिसमें एक ओबेलिस्क, एक सांप है, वो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स वाला। Right. यू नीड टू कन्फ्रंट दैट। उसके आंखें क्यों नहीं है? बिकॉज तुम डरते हो तुम्हारे फियर्स को देखने से। True, ऐसे true. ऐसे इंटरप्रिटेशंस निकाले उन्होंने कि, और ये सब बहुत फैसिनेटिंग है कि हैरी पॉटर इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अबाउट। एंड ऐसा होता है ना कि इफ यू आर अ पर्सन, यू आर वर्चुअस, तेरे में कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ बुरे गुण हैं, बट मोस्टली तेरे अच्छे गुण अगर तेरे सराउंडिंग वाले अप्रिशिएट नहीं करते, इट डजंट मीन दैट यू डोंट बिलोंग देयर। मतलब तेरा Right. कुछ हो ही नहीं सकता। हैरी व्हेन ही वाज इन द मगल वर्ल्ड, ही वाज अ नोबडी, बट व्हेन हैरी इज इन द विजार्डिंग वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट विजार्ड। Everything. Right. तो सो अगर सोचा जाए तो हैरी पॉटर इज अ वेरी ग्रेट नॉवेल दैट वे, ऑल द बुक्स। सो दैट इज व्हाई आई वुड रेकमेंड रीडिंग हैरी पॉटर वंस, क्योंकि मैंने जब वापस पढ़े बुक्स, मैं ये सब चीजों पे बहुत सोचा कि everything has an interpretation, everything is a metaphor in Harry Potter. True. Next, I would suggest reading, I think Dr. Jordan 12 Peterson's 12 12 Rules rules. for Life. हाँ, again a very heavy book, but if you, मतलब क्या होता है ना कि बहुत सारे चीजें हैं दुनिया में कि ये करो वो करो, जल्दी उठो, ये करो वो करो। मतलब वो बुक ऐसी लगी मुझे कि ठीक है, ही इज गिवन अस अ वेरी कंसाइज 12 रूल्स, इतने ही फॉलो करो। ऐसा भी नहीं कि दोस 12 रूल्स आर वेरी Hi. डिफिकल्ट टू फॉलो। एक रूल तो ऐसा है कि मेक योर बेड, सुबह True, उठो एंड true. मेक योर बेड काइंड ऑफ। सो दैट बुक आई डेफिनेटली रेकमेंड। थर्ड वुड बी खालिद होसैनी's books, like to fall in love with the love world of literature। मतलब आई डोंट थिंक देयर एग्जिस्ट एनी पर्सन जो खालिद होसैनी पढ़ के बोले कि दिस बुक ए था। आई डोंट थिंक आई हैव एवर कम Come अक्रॉस across. एनीवन, True, true. क्योंकि रीडर्स, नॉन रीडर्स, Right. एवरीबody appreciates his work। And next I would suggest yeah, Jhumpa Lahiri's books, basically Namesake or uh, Interpreter of Maladies and Actually, I have not read Jhumpa Lahiri. I all have of to check. those। Okay, Oh, okay, okay. She is my favorite author, by the way. If अच्छा. someone asks me, who's your favorite author, fiction author, Actually, सब Indian almost author, सारे booktober basically ने all बोला time था. favorite। So, but you know, Is even it? Avni also Okay. said, Shruti also said.
कि दिशा से कि ओह नेम सेक तो वाओ। बहुत बार बोला था, बट अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है यार। मुझे वो जिस पे जल्दी पढ़नी पड़ेगी लगता है मुझे। कि ये एक्चुअली क्यों अच्छा है, बताइए झुम्पा लाहिरी की राइटिंग क्यों अच्छी है? क्योंकि शी इज वेरी वेरी सिंपल, मतलब ऐसा एलिगेंट राइटिंग है ना, यू वुड फील यू आर अ कैरेक्टर इन, मतलब तुम्हारे आसपास चल रहा है ये सब। नॉर्मल अच्छा कॉन्वर्जेशंस है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, नॉर्मल ओके सिंपलिस्टिक सिचुएशंस है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है, एकदम नॉर्मल है। बट ऐसा लगता है कि इन सारे सिचुएशंस में एक मस्त सी मेलेडी चल रही है पीछे, एक मस्त ट्यून चल रही है पीछे। इट्स दैट ब्यूटीफुल। ओके And if you see, every book is of a Bengali taste and NRI based भी है थोड़ी कि हम्म। there's always a very conflict कि Indian living in the US. So that conflict, I think maybe book some is liked it most. या एग्जैक्टली So उसने उसका एक्चुअली क्या हुआ था, हाँ वो वहां पे शिफ्ट हो गई थी और उसने वही टाइम उसने वो बुक हम्म, पिकअप की थी एंड शी वाज लाइक हाँ क्राइंग उस बुक पढ़ के। हाँ, मतलब जो कंट्रास्ट दिखाया है ना उस बुक्स में कि हर एवरीथिंग इज अ कॉन्ट्रास्ट इन लाइफ ना, एवरीथिंग इज अ चॉइस यू मेक। अभी भी आई एम टॉकिंग टू आई, इट्स अ चॉइस आई मेड टू टॉक टू यू। राइट सो वो बैकड्रॉप चलता है उसके नॉवेल्स में, हर शॉर्ट स्टोरी में, हर मूवी में एक बैकड्रॉप रहेगा कॉन्फ्लिक्ट का। सो वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत। आई लव चुप्पा राइटिंग। अच्छा। सो दैट इज द वन। एंड आई थिंक चार हो गया ना, चार बोले मैंने। लास्ट, ठीक है जितने भी बोले, लास्ट आई थिंक रीडिंग क्या ऐसे रिकमेंड कोई करूँ, तो एक बहुत कुछ जो करना अंडररेटेड बुक मुराकामी। काइंड ऑफ अगर बुक होगी जो अंडररेटेड। कि जो मतलब तुमने बहुत कम बार रिकमेंड की होगी बट दैट बुक इज गुड वगैरह, ऐसे वैसे भी बहुत बुक होती है ना कि इट्स नॉट काइंड ऑफ बुक दैट वी रिकमेंड वगैरह, अगर होगी तो, नहीं हो तो देन वी कैन गो ओके, विथ नॉर्मल। नहीं नहीं, डेफिनेटली है। बहुत सारे बुक्स हैं, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम थिंकिंग अबाउट व्हाट शुड आई, सो मेनी। एग्जैक्टली। बट आई थिंक मैं थोड़ा ऐसा, आई लाइक स्पेस बुक्स, मैं थोड़ा स्पेस एंथुसियास्ट हूँ ना। अच्छा सो देयर इज अ बुक बाय नील डिग्रास टाइसन, एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी, मतलब इट एक्चुअली इज लाइक फॉर पीपल इन अ हरी। ओके इतना मस्त कॉन्सेप्ट है कि ही इज बेसिकली डिजाइंड इट फॉर पीपल हु कैन रीड इट ऑन द गो, बस में बैठे हो, खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, इतना अच्छा। सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में। सो आई थिंक अगर वो उसी पर्पस के लिए बनी है, सो यू शुड डेफिनेटली रीड, क्योंकि वो उसी उन्हीं लोगों के लिए, कि इफ यू आर इन हरी रीड सही दिस बुक। सो ओके। आई थिंक या दैट वुड बी माय बुक। या अगर तुम्हें ये सारी चीजें पसंद है ना, हैव अ लॉट ऑफ बुक्स टू रीड, बुक्स टू सजेस्ट यू। फर्स्ट वन इज द ओके, ऑर्डर ऑफ टाइम बाय द कार्ल समथिंग, द ऑर्डर ऑफ टाइम दैट यू कार्ल शुड सेगन, रीड। हाँ कार्ल कार्ल सेगन सेगल, आई डोंट एक्चुअली कार्ल सेगल और व्हाट actually I'm कार्ल also reading that सेगन book, लिख ले। The हाँ Order of Time, first book. Second book is Life 3.0. Life ओके 3.0. Then I guess it's from the Max Tegmark. Then there ओके is third book, Super Intelligence. Uh, then हाँ, fourth one ये is, सच सुना। अरे यार, लाइफ 3.0। उसके बाद और एक थी उसकी, उसी ऑथर की और एक बुक है। एक्चुअली मेरे गूगल पे सारी बुक्स है एक्चुअली, डाउनलोड करके रखी है ओके बुक, पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा था, ऐसा हो रहा था। हाँ हाँ लाइफ 3.0 एक है। देन एक्चुअली ये तो तुम पढ़ सकते हो, इसके लिए अभी तो बाकी के नाम नहीं याद आ रहे, हाँ, बिकॉज यही यही काफी हो गया। दोज बुक्स आर ऐसे होते हैं कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, यानी आई मीन दिस गो वेरी लेस हाँ पीपल कि दे आर इंटरेस्टेड इन काइंड ऑफ क्वांटम फिजिक्स टाइम, और जैसे फिजिक्स वगैरह पसंद है या मैथ्स पसंद है, वैसे बहुत हाँ कम लोग होते हैं, तो इसलिए आई डोंट टॉक अबाउट दिस बुक्स ऑन द चैनल बहुत पसंद है और मुझे। इंस्टाग्राम, हाँ बट यू करेक्ट शुड करेक्ट, वो डेफिनेटली। मासेस फ्रेंडली नहीं है, करेक्ट करेक्ट हाँ करेक्ट। exactly, because the order of time डेफिनेटली is book डेफिनेटली is so high, पढ़ूंगा। but the order of time that book is so high, but that will change your अच्छा understanding about the time. टाइम कितना बड़ा ओके। इल्यूजन है वो पता चल जाएगा। हाँ मुझे बहुत पसंद है ऐसे बुक्स है, वो मिचियो काकू है उनके बुक्स, हिचहाइकर्स हो गया। बहुत, एक तुमने ये सुना होगा, फ्रीकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, लेकिन फ्रीकोनॉमिक्स। मैं सुना है बट पढ़ा नहीं है अभी You तक। mentioned maths ना, हाँ so Freakonomics is one hell of a book. मैंने कभी recommend नहीं किया for the same reasons. It's too mathematical and हेवी और economical, but it's very fun. बहुत fun book है, अच्छा, आई विल डेफिनेटली रीड इट बिकॉज ऐसे बुक्स पढ़ने में मजा आता है मुझे, क्योंकि मैं तो मजा एक्चुअली आता है एक बहुत। वीडियो बनाने वाला कि हाउ आई लर्न क्वांटम फिजिक्स बट फिर सोचा कि कोई अच्छा देखेगा नहीं फिर हाँ मैंने यार बनाया कोई नहीं क्योंकि होता है यू नो द हाँ बेसिक रीजन कि हमने जो 11th 12th में सीखा था ना, वो कौन सा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ डबल स्लिट हाँ वो डबल क्लिक बेसिक है क्वांटम क्वांटम फिजिक्स का, बट हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। पार्टिकल
हाँ, हाँ, वो वेव और बेसिक है, पार्टिकल बट लाइन। किसी ने पढ़ाया नहीं हमें वो। सो हाँ, वहां बहुत से कुछ नहीं एक्चुअली पढ़ा है, मतलब करेक्ट। हम अभी तक न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जबकि आइंस्टाइन इज द वन हु सेज दैट ग्रेविटी कोई फोर्स ही नहीं है, ग्रेविटी इज जस्ट अ डिस्टॉर्शन इन स्पेस टाइम। एग्जैक्टली। मतलब स्कूल वाला तो क्या ही था। तो अभी अभी जाके पता चला कि ओके, फिर मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर वगैरह पढ़े और फिर पता चला कि ओके, हाँ। क्वांटम फिजिक्स कितना डीप टॉपिक है और लोग कितना हेट हम्म। करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वो एक्चुअली समझते नहीं हो, हेट भी नहीं, क्योंकि बट उसका लोगों को प्रॉब्लम लगता क्या है है, कि मुझे समझ नहीं आएगा। राइट, और उसका प्रॉब्लम क्या है कि गोन वो गोन। हमारे जो फिजिक्स के रूल्स वगैरह है ना, उस वो सारे तोड़ देता है क्वांटम फिजिक्स से। सब गलत है तुमने जो पढ़ा है। सब इसलिए गलत है। बहुत सारे साइंटिस्ट है कि उससे एग्री नहीं करते, बट आई रियली लव दैट रीडिंग, हाँ, सो यू शुड डेफिनेटली चेक। एक्चुअली एक बताता हूँ पक्का तुम्हें पक्का। इंटरेस्टिंग, तो उसमें शायद तुम्हें पसंद आ जाएगा। हम्म। द टाइम ट्रैवलिंग द टाइम ट्रैवलिंग एट द माउंटेन एट द सी लेवल बोथ आर डिफरेंट। टाइम का जो स्पीड है ना टाइम ट्रैवल ट्रैवल। होने का, वो माउंटेन पे लेवल हाँ पे क्या? डिफरेंट है और सी लेवल पे डिफरेंट है। तो वो बुक तुम पढ़ने कैसे? के बाद तुम्हें पता चलेगा अच्छा। कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। उसमें ओके। लेजिट प्रूफ है, लेजिट प्रूफ। ओह, अब मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। Actually, I will send you the तो book. ये You ऐसे, can read that. श्योर श्योर, डेफिनेटली आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दीस थिंग्स, एंड आई थिंक पता है, ये इंटरेस्ट थोड़ा और डेवलप हुआ, स्पर हुआ आफ्टर वाचिंग द मूवी इंटरेस्टेलर। अच्छा। मतलब it actually made a lot of people love space theories and space stuff. बहुत मुश्किल होता है कि इतना ग्रैंड लेवल पे कुछ बनाना, इतना अच्छा। ग्रैंड लेवल पे कुछ सिखाना लोगों को। दैट मूवी True, वाज true. लाइफ चेंजिंग फॉर मी So बहुत। is it like that the travel is now becoming the time travel? Retravel become. मतलब ओचे डैम। हाउ कूल इज दैट, आई नेवर थॉट ऑफ दैट। क्या कूल है यार। We can generate any topics from this, like travel के आगे या पीछे कुछ भी जोड़ दो। मस्त है यार, these topics are too good, too good. Time travel तो is like, I love that topic so much. मतलब पता है, time travel does exist. I'll give a small anecdote. तुम जब चांद देखते हो, you see a sun, the moon take an example because it's most prominently visible. मून का लाइट अपने तक आने तक there's a difference, there's a lag of I think 3 or 4 seconds. I'm not very sure on this number. Okay, so basically there's a lag. मतलब you are watching the past version of the moon. It's Right. not exactly what it is right now. This is time travel. True, true, This true. हाँ, this is yeah. time travel. You're looking into the past. So it starts from here. It's ये नील डिग्रा स्टेशन नहीं बताइए. So I love these topics, man. And I'm Exactly. glad we are having this conversation. Yeah, actually, we should do on this specific topic, like all the physics Let's do topic. this someday. Yeah, Yeah. because that will be more interesting. I should ask my audience, like, बहुत. will you be interested in हाँ, such topic? अगर yes चलेगा मिला तो चलेगा. we can do it definitely on Done done done. specifically. थोड़ा रिसर्च करके करेंगे मस्त. तो ज्यादा डिटेल में हाँ, जाएंगे। पक्का पक्का, और इन्फॉर्मेशन भी बहुत शेयर होगा, कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे भी बना सकते हैं, इसमें तो मजा आ Exactly. जाएगा. So anyways, I think that's a wrap for today because बहुत बड़ा अभी नई वीडियो बनाना था. So any last tips, advice, whatever you want to suggest for the audience, what it will be? Because I should not ask the question कि one advice क्या होगी. So any tips, anything, whatever you want to give. Just one thing, अगर कुछ मन में है, if you think you want to start something, don't think at all. कुछ मत सोचो, just start it. Things will automatically fall into place. मैंने YouTube चैनल सोचने के पहले बहुत सोचा कि करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं. एक पॉइंट ऐसा आ गया कि just छोड़ो सब, start करो. And अच्छा. it has been very fulfilling. So if it serves any inspiration, I know we are not big YouTubers, but at least we are doing something we love, and it's not at all cliche. ये जब बोलते हैं लोग कि do what you love, it definitely supports you. So my 2 cents of advice would definitely be just start. True. So guys, that's a wrap for today. I hope you have enjoyed this and thank you so much Avdut for taking time